today's lecture we will discuss the last but not least, that is monophysic liquid dosage form. In that chapter last is the Gargels. There in the classification of monophysic liquid dosage form there are two type. First is monophysic liquid dosage form used for internal administration, and after that monophysic liquid dosage form used for external administration. In that external administration of this monophysic liquid dosage form, there are some three example or type. First is used in the mouth, then the instilled into body cavities, and there is first and the application on the skin. Okay, we have to study in the lecture. Studied in the lecture, that is monophysic liquid dosage form used in the mouth. Okay, in that lecture we have to discuss the gargles, throat paint, okay, mouthwash, etc. Okay, gargles, they are aqueous solution used in the prevention or treatment of throat इन्फेक्शन. अब जो है गार्गिल्स होता है एक एक्यूएस सोल्यूशन होता है और कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में होता है. दे आर एक्यूएस सोल्यूशन. ओके, एक्यूएस सोल्यूशन होता है यूज्ड इन द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन. जो भी थ्रोट इन्फेक्शन होता है और ट्रीटमेंट थ्रोट इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट के लिए हमने गार्गिल्स का यूज़ करना है. ओके, यूजुअली दे आर प्रिपेयर्ड इन द कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन. ये जो सोल्यूशन होता है गार्गिल्स का कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है विद द डायरेक्शन फॉर द पेशेंट्स टू डायलूट विद द वार्म वाटर बिफोर यूज. अब इसको क्या करता है, जो इसको बनाते टाइम कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में बनाया जाता है और पेशेंट को बोला जाता है यूज़ करने से पहले कि इसको डाइल्यूट करो वार्म वाटर से. इसको डाइल्यूट करके फिर आपने इसको मुंह में डालना है और फ्यू सेकंड के लिए आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ इसका इंटीमेट कांटेक्ट करना है आपको. मतलब क्या करना है आपको, जैसा ही आपने इसको डाइल्यूट किया और इसको मुंह में लिया तो फ्यू सेकंड्स आपने इसको मुंह में रखना है. उसके बाद आपने इसको बाहर फेंक देना है. ओके, दे ब्राउट इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन of a throat and allowed to remain in a contact with it for a few seconds before thrown out of the mouth. Okay, container is that clear glass bottles with a plastic screw cap. Okay, clear glass bottle लेनी है हमको with a plastic screw cap. Okay, colored bottles are required to be used if a protection is required. अगर आपने कलर बॉटल भी लेने हैं तो आप कलर बॉटल का भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए. ओके, then next labeling. Most is labeling is that for, or we have to say that the direction is that for external use only, and proper dilution instruction is given here, that the proper on the label we have to properly you have to mention that the properly dilute before use. Okay, second direction is that. Okay, then the method of preparation is that very simple method of preparation is for the gargles, that is they are usually prepared by the dissolving all ingredients in solvents. all जो भी ingredient हमने लेने हैं वो solvent के अंदर मिक्स करना है और then make up the final volume as a required. Okay, final volume make up करना है. Okay, simple है gargles, they are aqueous solution and used in the prevention and treatment of throat infection. And after that we have to prepare in the concentrated form, and this is the used as in an intimate contact with the mucous membrane of throat and allowed remain in a contact with it for a few seconds, and after that before thrown out of the mouth. Okay, container is that clear glass bottles with a plastic screw cap. Okay, labeling for external use only, and second direction is that proper dilution before use. Okay, after that the advantages and disadvantages of this gargles is first is easy to use for the treatment of infection of pharynx just by gargling the solution using एयर फ्रॉम द लंग्स. ओके, अब ये फेरिंग्स को अगर हमने इसको मुंह में लेना है तो जो भी थ्रोट के इन्फेक्शन होते हैं, मुंह में जो भी इन्फेक्शन होता है, फेरिंग्स का जो इन्फेक्शन है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो लंग्स में से जो एयर आती है वो अच्छे से नहीं आती नहीं. तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये जैसा हमको देखो सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी आने के बाद क्या होता है कि हमारा पूरा गला जाम हो जाता है, हम अच्छे से सांस नहीं ले सकते, या तो बहुत हमको दर्द होता है, बहुत ज़्यादा खाने में स्वेलिंग करते टाइम हमको तकलीफ होती है. तो इस कंडीशन में फेरिंग्स का कुछ ट्रीटमेंट है, फेरिंग्स का कुछ इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है कि जिससे वजह से हम लंग्स से एयर अच्छे से नहीं ले सकते. इस कंडीशन में हमको एज ए ट्रीटमेंट बोल के गार्गल्स सोल्यूशन लेना है और उसका यूज़ करना है हमको.
relieve soreness in the mild throat infection. Second advantage is that relieve soreness in the mild throat infection. ये बताया गया है कि soreness मतलब जो पेन होता है मुंह के अंदर उसको ट्रीट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने ये सोल्यूशन लेना है, और यहाँ पर बताया गया कि रिलीव करना है, जो पेन है उसको रिलीव करने के लिए. सोरनेस मतलब जो पेन है, जो दर्द है हमारे माउथ के अंदर, उसको रिलीव करने के लिए, कौन सा, माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन रिलीव करने के लिए हमने गार्गल्स का यूज़ करना है. ओके, सप्लाइड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर सो रिड्यूस कंटेनर साइज. यहाँ पर बताया गया कि इस कंडीशन को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमने प्रिपेयर किया है. तो यहाँ पर ये एक एडवांटेज बताया जा सकता है कि बॉटल की साइज़ छोटी होगी तो हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए या कहीं लेने के लिए ईजिली हमारे साथ इसको, जब भी हम किधर बाहर कहीं जाना होगा हमें, तो इजीली हम हमारे बैग के अंदर स्मॉल साइज़ की जो कंटेनर है वो इजीली, गार्गल्स का जो स्मॉल साइज़ कंटेनर है वो इजीली हम उसको सप्लाई कर सकते हैं और इजीली उसको ले सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट करते टाइम भी हमको इजीली हम इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अगर कंटेनर की साइज़ छोटी रही तो. देन नेक्स्ट इज सुटेबल फॉर वैरायटी ऑफ ड्रग्स. अब ये सुटेबल है वेरियस वैरायटी ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक. ओके, एंटीबायोटिक जो ड्रग है वो इसके अंदर हमने ऐड करते हैं, एंटीसेप्टिक भी जो ड्रग है वो ऐड करते हैं, क्योंकि जो हमारा इन्फेक्शन है, जो भी समझो कुछ एंटीसेप्टिक ड्रग हमने इसके ऐड करे, एंटीबायोटिक ड्रग ऐड करे, तो हमारा जो इन्फेक्शन है वो ट्रीटमेंट है इसके द्वारा अच्छे से रिलीव हो सकती है और पेन जो है वो रिलीव हो सकता है. ओके, डिसएडवांटेज ये बताया गया है कि टेम्प्रेरी इफेक्ट ऑफ ड्रग्स. इसमें क्या होता है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम इफेक्ट हमसे नहीं होता है, उससे और बार बार तकलीफ हमें होगी. तो एक इसका डिसएडवांटेज क्या है कि टेम्प्रेरी इफेक्ट उसका शो होता है और ट्रीटमेंट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती, हमें इसका यूज़ बार बार करते रहना पड़ता है. इसका टेम्प्रेरी यूज़ है इसका ये सोल्यूशन का, जो हम गार्गल्स एज अ थ्रोट पेन के लिए लेते हैं, तो इसका एक टेम्प्रेरी इफेक्ट बता देता है. देन सेकंड देख लेते हैं एडवांटेज क्या है कि नॉट सुटेबल फॉर पेशेंट्स हैविंग रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम. आप किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है, किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, कोई रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में हम जैसे भी मुंह में लेते हैं तो वो थोड़ा तो भी हमारे मुंह के द्वारा हमारे रिस्पायरेटरी और लंग्स में चले जाएगा. इसलिए अगर किसी को रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो ऐसे पेशेंट को हम ये नहीं दे सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है. देन नेक्स्ट इज दे माइट भी सॉलोड. मतलब ये हम जैसा भी लेते हैं तो थोड़ा सा अंदर मुंह के अंदर चले जाता है, माइट भी थोड़ा सा सॉलो हो जाता है. ये डिसएडवांटेज है गार्गल्स का. ओके, समझ में आया, इजी है, गार्गल्स है, एक एक्वेस सोल्यूशन है, और थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट में हमने ये गार्गल्स लेना है. ओके, और उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमने देख लिए थे. अब इसके बाद कुछ फॉर्मुलेशन कंपोनेंट ऑफ गार्गल्स यू हैव टू, दिस इज गिवन here, that is additives. Some of the additives we have to add in the preparation of gargles. Then ingredients, then use co-solvent है, vehicle है, coloring agent है, flavoring agent है, preservative है, medicament है, antioxidant है. ये सारे ingredient co-solvent में glycerin, propylene, glycol, vehicle के अंदर water है. Sometimes we have to use in the preparation that is alcohol, then coloring agent that is always we have to learn, that is amaranth solution, tartrazine solution, or any FDA approved color you have to use in the formulation of gargles. Then after that, flavoring agent, that is cardamom oils, cinnamon oils, menthols, preservative as like that, phenol, chloro, okay, chlorocresol, benzoic acid, and etc. salt we have to use as a preservative. Okay, medicaments such as phenol, thiamol, potassium chlorate, volatile oils, potassium permanganate, antioxidants such as ascorbic acid, sodium bisulfite, sodium metabisulfite, thiourea you have to use in the preparation of gargles. Then use is used to enhance solubility of drug, to dissolve the excipients, attractiveness, to enhance acceptability, to inhibit the growth of microorganism, used as anti-infective, astringent, antiseptic, deodorants, bactericidal, to prevent oxidative degradation of drugs. This formulation you have to not learn in a detail. Okay, we have to only in your exam you are only asking, that is the definition of gargles, their container, labeling, okay, etc. you have to add it, not in a detailed formulation you have to asking in the exam. Okay, after that, next is you have to learn that is a liquid to be used in the mouth. Okay, this is the second
or a first example of a liquid used in the mouth, that is gargles. After that mouthwash, and third is throat paint. Okay, mouthwash देख लेते हैं आप. These are non-sterile aqueous solution with a pleasant taste and odor used for oral hygiene. Hygiene means क्या बोलेंगे, clean and deodorize buccal cavity and to treat infection of the mouth. ओके, अब आप बोलेंगे कि जैसे कि हमने गार्गल्स और माउथ वॉश के अंदर क्या फ़र्क है. गार्गल्स जो होता है, थ्रोट जो इन्फेक्शन, जो ज़्यादा इन्फेक्शन होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए गार्गल्स का यूज़ किया जाता है. माउथ वॉश इजीली हम रोज़ भी हम माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं, डेली रूटीन में भी माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं. दिस आर, अब ये जो सोल्यूशन होता है, दिस आर नॉन स्टेराइल एक्वियस सोल्यूशन विथ अ प्लीजेंट टेस्ट है. नॉन स्टेराइल है ये, एक्वियस सोल्यूशन होता है विथ अ प्लीजेंट, उसकी प्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर होती है. यूज्ड फॉर ओरल हाइजीन, क्लीन एंड डिओडराइज बकल कैविटी एंड टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ द माउथ. अब यहाँ पर जो माउथ वॉश हम यूज़ करते हैं जो डेली भी, जैसे कि हमारे मुंह में बहुत बैड स्मेल आती है, सुबह उठने के बाद, रात में हम सोते हैं तो सुबह उठते टाइम बहुत ऐसी बैड स्मेल आती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, और हमारे जो बकल कैविटी है एकदम फ्रेशनेस आने के लिए और एकदम बैड स्मेल चली जा, हम जैसे भी ये माउथ वॉश का यूज़ करेंगे तो हमारी जो बैड स्मेल है मुंह के अंदर की, वो पूरे अच्छे से चले जाएगी. और मोस्टली, और इसके अंदर क्या बोलेंगे, टू ट्रीट द इन्फेक्शन ऑफ माउथ के जो थोड़े से स्मॉल जो इन्फेक्शन है उसके लिए भी हमने माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं. ओके, कंटेनर, इसके अंदर इसके लिए कंटेनर क्या यूज़ करना है, वाइट फ्लुटेड बॉटल्स, मतलब फ्लुटेड मतलब असे निंबुळत्या आकारचे, म्हणजे किंवा असे जे फ्लुटेड बॉटल असतात त्या टाईपच्या बॉटलमध्ये आपल्याला ह्या कंटेनरचं किंवा स्प्रे टाईपमध्ये पण असतात बघा बॉटल, अशा टाईपच्या बॉटल आपल्याला माउथ वॉशसाठी यूज कराव्या लागतात. नंतर लेबलिंगमध्ये सांगता येईल की प्रॉपर डायरेक्शन फॉर माउथ वॉश डायल्यूशन मस्ट बी मेन्शनड. For external use only provide in a pH range of 5 to 9.5. 9.5 से 9.5 तक का रेंज में माउथ वॉश का जो प्रिपरेशन है, फॉर्मुलेशन, वो होना चाहिए. ओके, अब इसके जैसे कि हमने इसका माउथ वॉश का कंटेनर वो देख लिए थे, तो अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं हम. एडवांटेज आपने समझ में आया ना, माउथ वॉश क्या है, नॉन स्टेराइल एक्वियस सोल्यूशन है विथ अ प्लीजेंट टेस्ट है और ऑर्डर है, उसको यूज फॉर ओरल हाइजीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ माउथ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. देन उसके बाद कंटेनर वाइट फ्लूटेड बॉटल्स है, लेबलिंग फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड बिफोर यूज यू हैव टू डायल्यूट दिस सोल्यूशन. ओके, आफ्टर दैट एडवांटेज देख लेते हैं. यूटिलाइज टू रिमूव लूजेन डेब्रीज एंड फूड फ्रॉम द माउथ. यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हम खाना खाने के बाद जो हमारे दांतों में जो खाना हमारे दांतों में चले जाता है और जो अटक जाता है, उसको निकालने के लिए भी हम माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं. देन प्रोवाइड डिओडोरेंट, रिफ्रेशिंग एंड लोकल एनाल्जेसिक एंड एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट. यहाँ पर ये बताया गया कि एक फ्रेशनेस प्रोड्यूस होने के लिए और डिओडोरेंट, एक अच्छी सी स्मेल, हम जो बैड स्मेल चली जाएगी. जैसे भी हम ये माउथ वॉश लेंगे तो एक हमारा जो माउथ है वो एक क्लीन हो जाएगा और रिफ्रेश एक इफ़ेक्ट हमारे मुंह के अंदर दिखाई देगा. और डिओडोरेंट मतलब एक अच्छी स्मेल हमारे मुंह के अंदर आएगी जैसे भी हम माउथ वॉश का यूज़ करेंगे तब. देन लोकल एनाल्जेसिक मतलब जो पेन होता है थोड़ा बहुत हमारे दांतों में और मुंह में या जबड़ों में या मसूड़ों में, वो माउथ वॉश का रेगुलर यूज़ करने के बाद वो चले जाएगा. और एस्ट्रिंजेंट मतलब जो पेन होता है, जो मसल पेन हो, जो मसूड़े के अंदर जो पेन होता है, वो जो एक रिलैक्सेशन आपको फील होगा. ओके, ये माउथ वॉश लेने के बाद. समटाइम यूज टू ट्रीट द माउथ इन्फेक्शन बाय यूजिंग एंटीबैक्टीरियल एजेंट. इसके अंदर क्या किया जाता है, समटाइम मोस्टली एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी ऐड किया जाता है, क्योंकि कुछ एक माइक्रोबियल ग्रोथ हमारे मुंह में हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रिलीव करने के लिए हम माउथ वॉश का यूज़ कर सकते हैं. ये क्या हो गया, उसके एक एडवांटेज बोल सकते हैं हम. ये सम ऑफ दिस वी हैव टू लर्न द एडवांटेज ऑफ द माउथ वॉश. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू learn the disadvantages is that if pH not monitored properly then may damage mouth tissue. ओके, इसका pH 5 से 5.9 तक ही होना चाहिए इस प्रिपरेशन का, फॉर्मुलेशन का. अगर इससे ज़्यादा pH होगा तो हमारे जो माउथ की जो टिश्यू है वो डैमेज हो सकती है और मुंह में हमारे इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो सकने के चांसेस हैं. ओके, ये समझ में आए. इजी है माउथ वॉश, थ्रो गार्गल्स माउथ वॉश इजी है समझने के वास्ते. इसके अंदर क्लासिफिकेशन बताया गया है माउथ वॉश का. ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में स्टडी नहीं करना है आपको. माउथ वॉश के जनरली
दो टाइप में होते हैं, एक कॉस्मेटिक बोल के भी यूज़ किया जाता है, थेरापेटिक, देन कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है. Not going to detail for these mouthwashes, only we have to learn the definition, container and labeling, okay, of this preparation. ओके, माउथ वॉश के 3 टाइप है, एक कॉस्मेटिक है, दूसरा थेरापेटिक है और तीसरा है कॉम्बिनेशन फॉर्म एक होता है. ओके, नॉट गोइंग टू डिटेल. मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं. सॉल्यूशन मेथड है इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए. सॉल्यूशन मेथड वी हैव टू यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माउथ वॉश वेयर मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट आर डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट और कोसोलेंट मिक्सचर टू फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन. इसमें सिर्फ जो हमने व्हीकल लेना है, वाटर है, अल्कोहल है, जो हम व्हीकल यूज़ करेंगे फॉर्मुलेशन के लिए माउथ वॉश के, उसके अंदर आपने जो इंग्रेडिएंट है वो सिर्फ डिजॉल्व करना है और वॉल्यूम मेकअप करना है. ओके, आफ्टर दैट हम जो थर्ड है हमारा पॉइंट है थ्रोट पेंट का, वो देख लेते हैं हम. थ्रोट पेंट क्या होता है, जो फर्स्ट हमने देख लिया गार्गियल, सेकंड देख लिया माउथ वॉश और थर्ड देख लेते हैं हम थ्रोट पेंट्स. थ्रोट पेंट क्या होता है वो देख लेते हैं. विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन. ये भी है थ्रोट पेंट जो होता है एक विस्कस है, जैसे कि हमने गार्गियल देखे थे वो एक्वा सॉल्यूशन था. देन उसके बाद माउथ वॉश जो था, माउथ वॉश जो है एक्वा सॉल्यूशन है. ओके, एक्वा सॉल्यूशन है वो दोनों भी एक्वा सॉल्यूशन है. अब जो हम थ्रोट पेंट देखते हैं ये विस्कस लिक्विड है और इसका यूज़ किया जाता है माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन, पूरा मुंह और थ्रोट का इन्फेक्शन दोनों का भी यूज़ करने के लिए हमने इन थ्रोट पेंट का यूज़ करना है. दिस पेंट्स कैन बी अप्लाइड ऑन टू द स्किन and mucous membrane, but all paints cannot be used for application onto mucous membrane. ओके, यहाँ पर ये बताया गया है कि ये विस्कस पेंट है हमारे मुंह की जो स्किन है अप्लाइड ऑनटू स्किन के ऊपर और म्यूकस मेम्ब्रेन के हमारे ऊपर लगाना है ये थ्रोट पेंट, बट ऑल पेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशन ऑनटू म्यूकस. पूरा थोड़ा सा लगाना है हमको, पूरा जो विस्कस लिक्विड है वो पूरा नहीं लगाना है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर. ओके, तो ये यूज़ किया जाता है, एक विस्कस लिक्विड है, प्रिपरेशन यूज्ड फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन. पेंट्स कैन बी अप्लाइड ऑन टू स्किन एंड थ्रोट एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, बट ऑल पेंट्स कैन नॉट बी यूज फॉर एप्लीकेशन ऑन टू म्यूकस मेम्ब्रेन. कंटेनर यहाँ पर बताया गया कि एयर टाइट कलर फ्लूटेड बॉटल्स यहाँ पर यूज़ किया जाता है. लेबलिंग में फ्लूटेड मतलब क्या बोलेंगे, ऐसा निंबू करचे किंवा अशा स्प्रे टाईपमध्ये असतात बघा ते थ्रोट पेंट वगैरे किंवा छोट्या बॉटल असतात अशा, त्याला फ्लूटेड बॉटल असं कलर फ्लूटेड बॉटल आपण म्हणूयात. लेबलिंगमध्ये सांगता येईल की फॉर एक्सटर्नल यूज इथं सांगायचं आहे की आपल्याला फॉर द एक्सटर्नल यूज ओनली. इट शुड ऑल्सो कंटेन ऑक्सिलरी लेबल लाइक थ्रोट पेंट्स यूजुअली कंटेन volatile oils as a flavoring agent, therefore to prevent their volatilization at a higher temperature. ओके, यहाँ पर आपने सिंपल लेबलिंग में इतना लिखना है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू नॉट टू बी, लेबलिंग में ही आपको बताया गया कि नॉट टू बी सॉलोड इन अ लार्ज क्वांटिटीज, कीप द कंटेनर टाइटली क्लोज्ड. यहाँ पर बताया गया कि जो हमने थ्रोट पेंट मुंह के अंदर या माउथ के अंदर लगाएंगे, जहाँ भी इन्फेक्शन है वहाँ लगाएंगे तो आपने उसको सॉलो नहीं करना है लार्ज क्वांटिटी में, उसको कीप करना है. कंटेनर यूज़ करने के बाद टाइटली कंटेनर क्लोज करना है. स्टोरेज बताया गया है यहाँ पर. स्टोरेज क्या है, डिस्पेंसड इन एयर टाइट कंटेनर एंड स्टोर्ड इन कूल प्लेस के अंदर हमें रखना है. ज़्यादा टेम्परेचर की कंडीशन में हमने ये प्रिपरेशन नहीं रखना. ओके, डायरेक्शन यहाँ पर बताया गया है कि थ्रोट पेंट शुड कंटेन द डायरेक्शन टू द पेशेंट एज अप्लाई विथ अ कैमल ब्रश एज अ डायरेक्टेड एज अ फिजिशियन डायरेक्टेड. यहाँ पर ये बताया गया कि जो कैमल टाइप का ब्रश होता है उससे भी आप इजीली अप्लाई करेंगे, हम अपने माउथ के अंदर थ्रोट के ऊपर और माउथ के ऊपर इजीली अप्लाई करेंगे, या तो जैसे फिजिशियन आपको बताएंगे उसी तरह से आपको इसका यूज़ करना है. ओके, थ्रोट पेंट ईजी है, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है, माउथ का जो इन्फेक्शन है, थ्रोट का जो इन्फेक्शन है वहाँ पर आपको ये यूज़ करना है. कंटेनर में एयर टाइट कलर फ्लूटेड बॉटल कंटेनर यूज़ करना है. लेबलिंग के अंदर फॉर एक्सटर्नल यूज लिखना है. नॉट टू बी सॉलोड इन अ लार्ज क्वांटिटी आपने यहाँ पर मेंशन करना है. कीप द कंटेनर टाइटली क्लोज आफ्टर यूज. स्टोरेज डिस्पेंस इन एयर टाइट कंटेनर एंड स्टोर्ड इन अ कूल प्लेस. डायरेक्शन, थ्रोट पेंट शुड कंटेन द डायरेक्शन टू द पेशेंट एज अप्लाई विद अ कैमल ब्रश और एज अ डायरेक्टेड बाय फिजिशियन. ओके, इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो देख लेते हैं. एडवांटेज और डिसएडवांटेज में क्या है, यूज्ड एडवांटेज देख लेते हैं. यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन एंड माउथ इन्फेक्शन. ओके, हाईली विस्कस सोल्यूशन है, सो रिटेन टू द अप्लाइड प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि हमने दोनों भी प्रिपरेशन हमारे पहले देखे थे कि वो एक्वेस सोल्यूशन था तो हम उसको मुंह के अंदर सिर्फ रख सकते थे, उसको लगा नहीं सकते. अब ये विस्कस प्रिपरेशन है तो हम इसको बहुत देर तक, कुछ टाइम तक फॉर लॉन्गर पीरियड हम इसको लगा के रख
सकते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा टाइम तक रिलीव मिलेगा। ये इसका एक एडवांटेज बता सकते हैं मोस्टली। उसके बाद ग्लिसरीन यूज्ड एज ए सॉल्वेंट विच प्रोवाइड विस्कोसिटी एंड टर्न लिक्विड स्वीट। ओके, ग्लिसरीन हमने यहाँ पर यूज़ किया गया है उसकी विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए और विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए एंड टर्न लिक्विड स्वीट करने के लिए भी हमने यहाँ पर ग्लिसरीन का मोस्टली यूज़ किया है इस थ्रोट पेंट के लिए। इसमें दो टाइप की है प्रैक्टिकल में, एक मैंडल्स क्या बोलेंगे, एक पेंट बोल के मोस्टली ग्लिसरीन का जो पेंट है उसको आयोडीन पेंट और मैंडल्स पेंट बोल के एक मार्केटेड प्रिपरेशन बनाते हैं, उसका मार्केटेड प्रिपरेशन है मैंडल्स पेंट और थ्रोट पेंट ऐसे बोलेंगे, थ्रोट पेंट ऐसे बोलेंगे। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ ब्रश और स्मॉल कॉटन पीस। ये एडवांटेज ये है कि इसको यूज़ करने के लिए कॉटन पीस और स्मॉल कॉटन पीस और ब्रश का यूज़ करना पड़ेगा, एक मोस्टली बोलेंगे कि डिसएडवांटेज हो सकता है इसका। दे इनिशिएट सलाइवेशन हेंस पेशेंट हैज़ टू स्पीट, मतलब यहाँ पर इनिशिएट मतलब बहुत देर तक हम उसको लॉन्गर टाइम माउथ के अंदर रखेंगे तो थोड़ा सा उसका सलाइवा के अंदर उसका जो थ्रोट पेंट है वो चला जाएगा और पेशेंट उसको थोड़ा सा इंटेक कर लेंगे और थोड़ा सा मुंह के अंदर से और चला जाएगा। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इसका, बता सकते हैं। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। आज के लेक्चर में हमने 3 स्टडी किए, एक क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख ली हमने, फर्स्ट जो था गार्गेल्स देख लिए, इजी है, एक सोल्यूशन है। उसके बाद उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिए हमने, मार्केटेड फॉर्मुलेशन जो होता है उसके अंदर क्या क्या एडिटिव्स और इंग्रेडिएंट और उसका यूज़ हमने स्टडी कर लिए। इसके बाद माउथ वॉश देख लिए, कंटेनर लेबलिंग, उसके बाद उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके बाद क्लासिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा ये IMP नहीं है, पूछा नहीं जा सकता, नॉट गोइंग टू गो इन टू डिटेल फॉर दिस माउथ वॉश। आफ्टर दैट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिंपल सोल्यूशन मेथड है। उसके बाद थ्रोट पेंट हमने देख लिया, उसका कंटेनर लेबलिंग, स्टोरेज, डायरेक्शन, उसके बाद एडवांटेज उसका, डिसएडवांटेज। ओके, उसके बाद उसका इसका फॉर्मुलेशन भी हम देख लेते हैं, यहाँ इन शॉर्टली देख लेते हैं। सॉल्वेंट, विस्कोस सॉल्वेंट वी हैव टू यूज फॉर द दिस फॉर्मुलेशन ऑफ थ्रोट पेन। ग्लिसरीन और लिक्विड पैराफिन वी हैव टू यूज। मेडिकामेंट में एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट और एंटी इन्फेक्टिव फिनॉल, थाइमोल, उसके बाद आयोडीन, क्रिस्टल वायोलेट, टैनिक एसिड, बोरिक एसिड हमने यूज़ करना है। फ्लेवरिंग एजेंट में वी हैव टू ऐड दे गेट रीड फ्रॉम द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट ऑफ द अदर raw materials and give a cold refreshing taste. The example, water insoluble essential oils such as peppermint, spearmint or peppermint, eucalyptus and methanol we have to use as a flavoring agent in the throat paint. Okay, coloring agent for attractive appearance such as FDC colors we have to added in this formulation. After that, sweetening agent may improve the taste. For that purpose we have to adding sodium saccharine, sorbitol, glycerin, xylitol. Okay, preservative में आपने यहाँ पर यूज़ करना है सोडियम बेंजोएट एंड मिथिल पैराबेन, इथिल पैराबेन, प्रोपिल पैराबेन वी हैव टू यूज इन द प्रिपरेशन. ओके, इन टूडेज लेक्चर वी हैव टू लर्न द monophysic liquid dosage form used for external application, used for external purpose. In that, first is application on the skin, second is used in the mouth, and third is instilling into body cavities. We have to complete it, that is mouthwash. We have to complete it in this lecture, that is liquid dosage form used in the mouth. That is, first is gargles, second is mouthwash, and the third then the third is we have to say that the what is that throat paint. Okay, thank you.